एक्साइटेड नर्वस है आप लोग उस बारे में कुछ बताइए और किरदार के बारे में कुछ शेयर करें। सबसे पहले तो नमस्कार एवरीबॉडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक्साइटमेंट क्या है ये तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली फ़िल्म है, उसका म्यूज़िक लॉन्च, उसका ट्रेलर लॉन्च है। आशा करता हूँ कि ये फ़िल्म आप सबको बहुत पसंद आएगी, पूरे भारत को पसंद आएगी। लोगों की फ़िल्म है, आप सबके लिए है, बहुत अच्छी लगेगी। और जैसा आपने बड़े बड़े स्टार्स को प्यार दिया शुरुआत में, प्लीज़ मुझे भी दीजिए, हमें दीजिए और हमारी फ़िल्म को देखने जाइए, उसे सुपर हिट करिए। ये मैं अनुरोध करता हूँ आप सबसे, पूरे भारत से। नमस्कार। I'm very excited, and as my co-star Pranjal said, that we are very nervous as well as very happy. You know, like it's a dream come true. And please, please give lots of support to this film because it's very special. You know, I mean, after a very long time, I think such new pair is coming with like a very new energy. And please, please give lots of support. That's what I want to ask each and everyone. And thank you so much for being here. And one more thing, you all are electrons, right? Yeah. You all are electrons. I can't reveal it right now, but when you will watch the film, you will feel that all will feel that you all are electrons. And how's your experience working with Makran sir? Yeah, amazing, amazing. He's a Amazing. remarkable person. Makran sir is remarkable, and you all know that. और पहले तो थोड़ा लग रहा था कि क्या होगा, कभी देखा भी नहीं था इतने बड़े स्टार को, लेकिन जब किया तो ही इज़ सच अ स्वीट पर्सन, बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप ऑडियंस को भी वो केमिस्ट्री मेरे साथ मकरन सर की बहुत अच्छी लगेगी। That I can't really assure you as of now. लेकिन I have known Akash since some time now, and we really bonded as friends. And managing all of this, coming up with a new show, that to a reality show, is a big deal. It's a very big deal. I know because I have done one in recent past. So, firstly, big congratulations to him for coming up with this beautiful concept. A very interesting one, जिसका अभी preview उसने हमें सबको दिखाया है. So yeah, contestant or not, I don't know as of now, but I am surely as an audience, I would be hooked up to this show, is what I think. अब तो रुकने वाला नहीं है, प्रोडक्शन आ रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हर साल लेके आऊँगा मैं, और जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे उतने ज़्यादा लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। सो इट्स विद आदिश के साथ तो आप इसी साल मेरा कोई काम देख लोगे। इसी साल वी आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट एंड वेरी सून वी आर ब्रिंगिंग इट ऑन बोर्ड फॉर यू गाइस। सो दैट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 6 months to 1 year के टाइम फ्रेम में इनको जानता हूँ। हालांकि ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग, ही वर्क्स अ लॉट, इज ऑब्वियसली ऑलवेज प्री ऑक्यूपाइड। आई हैव बीन डूइंग माई थिंग्स, तो हम लोग ज़्यादा मिल नहीं पाते, लेकिन वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली इन टच और हम लोग कोशिश करते थे। एंड रिसेंटली ऑफकोर्स वी मेट, एंड ऐसा कभी लगा नहीं कि हम लोग पहली बार मिल रहे, बिकॉज वी यूज्ड टू ऑलवेज बी इन टच दैट, एंड ही हैज़ दिस वार्मथ एंड द स्वीट साइड ऑफ हिज, which he makes people feel at home. So I think it's always been the same with him. And as someone, as a fellow, as a friend, you can say that somebody who belongs to the industry, you see someone grow like this, coming from a different background, coming to Mumbai and starting a whole new show, a whole new regime. I think it's fantastic. And I think today, as of now, at this very moment, I am just here to show my support and love to my beloved friend. Thank you very much. Thank you very much. First of all, congratulations to you. In this industry, whoever just comes out with their own idea, their own, thinking, I mean, it's always, itna sara, my good wishes is with you. And I love what you're wearing. Thank you very much. और हमने बिल्कुल decide नहीं Even किया you are था. wearing similar to my show, House of Devils and Angels, white and black. So, I'm a devil or an angel? A combination of both, I guess. Combination of both. Anyway, but thank you for inviting me. Thank you very much for coming. I always want to work with Poonam. Who don't want to work with Poonam Pandey? Tell me that. Poonam is a great actor. She has done King 2 recently. She has hosted it. Why not? I'll work with her. She's a good, talented host as well. As well as a good actor. Done many shows like Lock Up. So I'm definitely looking forward to do a reality show maybe. हूँ यहाँ पर आज IJM प्रोडक्शंस का जान अभी बाकी है। जहाँ लोग कह रहे हैं तीसरा
महायुद्ध विश्व युद्ध होगा वहाँ पर कह रहे हैं ये आईजीएम प्रोडक्शंस और पी स्क्वायर मीडिया जो मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डायरेक्टर राइटर सत्यजीत, उनके भाई है धर्मजीत जो कि क्रिएटिव हेड है, कई लोग जुड़े हुए हैं इस मात्र एक सकारात्मक दृष्टिकोण से कि कहीं ना कुछ अभी जिंदा है। तो ये बहुत अच्छी लाइन है। हमें एक दूसरे को ज़िंदा रखना है, हमें एक दूसरे को ज़िंदा रखना है, तुम मुझे रखना मैं तुझे। बहुत खूबसूरत सी बात है। तो मैं तो इसमें कलाकार हूँ, तो एक पात्र मुझसे कहा गया है कि नहीं बताना है, पर एक ऐसी लव स्टोरी है जो असाधारण है, एक्स्ट्रॉर्डनरी है। प्यार जो हम सीमाएं होती हैं उससे हटकर है या उससे पार है। अभी आज तो एक गाना लॉन्च कर रहे हैं और ट्रेलर, तो म्यूज़िक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट को शुभकामनाएं। और आप सभी लोग आए हो। देखिए, जब नया डायरेक्टर होता है, प्रोडक्शन हाउस होता है, तो मीडिया ही उसको सपोर्ट करता है। तो अच्छे लोग हैं, लिखे पढ़े लोग हैं और इंसान बहुत अच्छे हैं। तो मैं चाहूँगा कि धनराशि भी उनको मिले क्योंकि पैसा खर्च किया है, मुझे नहीं पता ज़मीन वगैरह बेची है, क्या किया है, घर बेचा है, पर पैसे तो चुकाए हैं सबके और बहुत प्यार से फिल्म बनाई है। तो एक बस इतना ही चाहूँगा कि 1 अगस्त तक आप इनका ख्याल रखें, फिर ऑडियंस रखेगी। सर, अगर आपके किरदार के बारे में कुछ शेयर करें, किस तरह का किरदार होगा? मुझे अब भी बताया गया है, पीछे ही कुछ ना बताना वैसे देखो, इधर एक है, आई एम ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन। कहीं तो एक हम कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी को साइंस से जोड़कर कुछ एक इम्पोर्टेंट बात कही गई है लव स्टोरी के द्वारा। ऐसा मोटा मोटा मुझे भी लग रहा है। तो देखते हैं, फिल्म का इंतज़ार करो, देखो ट्रेलर अंदर दिखाएंगे तब देख लें। एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कीजिए सर, कैसा है? एक्सपीरियंस तो यही मैंने कहा कि मतलब इतने अच्छे इंसान सत्यजीत और धर्मजीत, विनम्रता कोई सीखे तो इनसे सीखे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कि आज की तारीख में इतना प्यार और मिठास किसी के स्वभाव में कैसे हो सकती। तो बहुत इंटेलिजेंट है सत्यजीत, वो समझते हैं कि वो क्या बनाना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है किसी भी क्रिएशन में समझ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और वो क्योंकि फिल्म माध्यम ऐसा है कि वो एक पारंपरिक भी हो सकता है, एक दायरे में बनाई हुई फिल्म भी हो ही सकती है, लेकिन एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन होता है। तो मुझे लगता है अगर कोई इंडिविजुअल है, उसका ग्रामर फिल्म का अलग हो सकता है और देखना है। मैं भी उत्सुक हूँ आपकी तरह कि क्या नया है। मकरंद, सॉरी हिंदी में बोलती हूँ। मकरंद, आप मुझे बताइए, गाने सुने हैं, म्यूजिक सुना है, आपको कैसा लगा है? कोई रिएक्शन देना चाहेंगे? मैंने सच बताऊं अभी नहीं सुना है, पर अच्छा होगा। ये मुझे सुनाया नहीं है इन लोगों ने अभी, लेकिन मैं व्यस्तता के कारण मैं नहीं सुन पाया हूँ असल में। अभी मेरा थिएटर फेस्टिवल चल रहा है तो पृथ्वी पे बस भाग रहा हूँ मैं अभी, हाँ, एवरी डे। तो बट येस, आई एम श्योर इट इज़, मुझे लगता है लव स्टोरी है तो म्यूज़िक में प्यार होगा, है ना। मकरंद जी, हर फिल्म में दर्शकों ने आपको कुछ हटके लुक में देखा है, पूरा हटके किरदार होता है आपका। जी। इस फिल्म में भी ऐसा कुछ देखने मिलने वाला लोगों को नया? बात जो कह रहा हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है जो मेरा स्वभाव है उसके नज़दीक है कुछ बात। बाकी नहीं, लुक तो मतलब एक
हाँ, ये कह सकते हैं, क्यों नहीं। मतलब एक ऐसा पागल नहीं दिख रहा आपको या ऐसा आपको नहीं दिख रहा, इतना मैं कह सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो सर मच। वन मोर क्वेश्चन, हमने जहां आपको देखा है बॉलीवुड इंडस्ट्री और मराठी इंडस्ट्री दोनों में आपके छाप छुपे हुए हैं और दोनों इंडस्ट्रीज के लोग आपसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रखते हैं। इस समय महाराष्ट्र में जो चल रहा है हिंदी मराठी को लेकर, आप क्या अपना ओपिनियन देना चाहेंगे? क्योंकि आप बहुत ही काम किया और लोगों से प्लीज़ कुछ शेयर करना चाहें आप जिस तरीके का माहौल है। देखो, मसला असल में जो है वो पेचीदा बनाया जा रहा, मुझे लग रहा है बहुत ही सीधा सीधा है बात की। जो ज्ञान होता है वो आपको आपकी मातृभाषा में मिले, वो अच्छी बात होती है। सबसे मुझे लगता है हर प्रांत का अपनी भाषा है और जो सारे विषय हैं जिसकी बुनियाद होती है वो आपकी मातृभाषा में मिले तो अच्छी बात होती है। तो वहाँ आप दूसरी भाषा, तीसरी भाषा, मुझे लगता है वो अपनी अपनी आज़ादी होनी चाहिए, सख्ती होनी नहीं चाहिए। जिस प्रांत की जो भाषा है वहाँ पर होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो थोड़ी सीख लो, अच्छा लगता है। यदि मैं आपके घर आऊँ, आपकी भाषा में बात करूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है एक वो वाली बात है, सिंपल से रखिए बात। हाँ हाँ, ओके सर, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? कितने एक्साइटेड है ट्रेलर, म्यूजिक देखने के लिए? मैं बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हूँ कि मतलब एक शानदार, एक खूबसूरत सी फिल्म जो कि मतलब उत्तरांचल के अंचलों में बनी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मतलब लोगों को सब कुछ पसंद आएगा। इसमें अभिनय से लेके, कहानी से लेके सब कुछ एकदम नया है, क्योंकि बच्चे भी नए हैं जो कि इस फिल्म में काम कर रहे हैं, और साथ के साथ मतलब मेरे पुराने साथी हैं वो सब भी इसमें हैं। सबने बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से इसको संजोया है, संवारा है, और मज़ा आएगा देखने में। सर थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बताएं और ये फिल्म करके कैसा एक्सपीरियंस? मेरा किरदार मैं बिल्कुल भी मतलब लेश मात्र भी बताना नहीं चाहता कि मैं इसमें, लेकिन मेरे को बहुत मज़ा आया। मैं चाहता हूँ कि कृपया करके आप लोग इसको देखो तो बहुत ही आनंदित रहोगे। जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा ये? बहुत एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उत्तराखंड में काम करने में मुझे वैसे भी मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि पहाड़ की वादियों में जाकर के आपको, और ऐसे मौसम में जबकि गर्माहट हो हर जगह, लेकिन वहाँ एक खूबसूरत अच्छा सा माहौल हो, वो आपको बहुत आनंददायक लगता है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक फील होता है, खाने में मज़ा आता है, शूटिंग में मज़ा आता है। तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें और इसके आगे। सर इन दिनों जो है नए एक्टर्स को लोग ज़्यादा कास्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सत्यजीत जी ने जो इनिशिएटिव लिया है नए एक्टर्स को लेकर, उसके बारे में सब कुछ अगर शेयर करना चाहें। एक्चुअली क्या है ना कि मतलब एक रिस्क होता है, हर तरह का एक रिस्क होता है, और सज्जीत जी ने जिस तरीके से उनको अपनी फिल्म के लिए जिस तरह का माहौल में फिल्म बन रही थी, जिस तरह का माहौल फिल्म में दिखाया गया है, उसमें जब आप देखोगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ ये इस तरह के बिल्कुल बच्चों का अगर हम बिल्कुल फ्रेश चेहरों को लिया जाए तो फिल्म के लिए भी लाभदायक होगा और लोगों को देखने भी बड़ा फ्रेश फील होगा। एक्चुअल में क्या होता है ना कि एक रिस्क होता है कि हर कोई एकदम से नहीं ले पाता है, किसी भी नए बच्चे को नहीं ले पाता है। सबको होता है कि ये थोड़ा सा फारिग हो जाए, कुछ इसका इस्तेमाल हो जाए, कुछ ये ट्रेंड हो जाए, तो वही एक डर रहता है, वही सभी को रहता है। लेकिन सज्जीत जी ने जिस तरीके से एक हिम्मत दिखाई है, हिम्मत जुटाई है, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। I'm very happy that our film's music launch and trailer launch is today, and well, everybody speaks about love. I will also speak about love in a very different way. हमारी फिल्म में आपको प्यार की एक नई परिभाषा मिलेगी, लेकिन मेरा कहना है कि the most misused word in this universe is love, और मेरे किरदार से भी उसका बहुत रिश्ता है इस फिल्म में। बहुत ही एक खूबसूरत सा किरदार है मेरा, मेरी भी एक लव स्टोरी है इसमें, और आपको लव इन वेरियस कोशेंट पता लगेगा। म्यूज़िक बहुत अच्छी है इस फिल्म की और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और मैंने इस बात को अपने कई इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सच अ ब्यूटिफुल एंड मेलोडियस म्यूज़िक हैज़ कम in the industry,
और उसका श्रेय जाता है हमारे प्रतिभावान निर्देशक और लिरिक्स राइटर सत्यजीत जी को। उनके पिताश्री ने भी लिखे हैं गाने और बहुत ही खूबसूरत गाने हैं और ऐसा लगता है कि मिस्री सी घुल गई कानों में जब भी कोई ध्वनि आती है, आवाज़ सुनाई देती है। एंड that is the most important thing, and I am looking forward. I am very happy and very excited for the promo and trailer launch, and I hope that our film does wonders in the market. Love you all. Bye. Take care. मेरा नाम अशोक कुमार बेनीवाल है और फिल्म के बारे में मैं क्या कहूँ, ये इमोशंस के बारे में है और इतने प्यारे इमोशंस हैं इस फिल्म में और असली चीज़ इमोशंस ही होती है। जितने भी कलाकार हैं इस फिल्म में, जितने भी लोग इस यूनिट के हैं, इतने टाइम से हम देख रहे हैं, सत्यजीत जी और धर्म जी, इन्होंने दिल से फिल्म बनाई है और इमोशंस के साथ में हम सबको भी जोड़ा है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल इस फिल्म का एक हिस्सा बनकर। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।